requesting our Politburo member, Comrade Prakash Karat, to come before the portrait and pay tribute with garland. এবার শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন আমাদের পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রঞ্জু কর। শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন পার্টি রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অমল হালদার। শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন পার্টি রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অচিন্ত মন্ডল। শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন পার্টির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মদন ঘোষ। শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন পার্টির প্রবীণ নেতা কমরেড অরিন্দম কোনা। শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন প্রয়াত কমরেড নিরুপম সেনের সহধর্মিনী বৌদি কমরেড চন্দ্রাবলী সেন। আমি একে একে সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যদের অনুরোধ করছি তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করুন। কমরেড সমর ঘোষ, কমরেড তাপস সরকার, কমরেড তাপস চ্যাটার্জি, কমরেড আখতার আলী, কমরেড শুকুল সিকদার, কমরেড অশেষ কোনা, কমরেড সুদীপ্ত বাগচি, কমরেড অপূর্ব চ্যাটার্জি, কমরেড অভিজিৎ কুমার, কমরেড মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের কর্মসূচির কাজ আমরা শুরু করেছি। আমি প্রথমেই আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন তাদের প্রত্যেককেই আমাদের পার্টি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের পার্টি পলিটব্যুরো সদস্য প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রকাশ কারাত, উপস্থিত আছেন আমাদের পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রঞ্জু কর, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অমল হালদার, কমরেড অচিন্ত মল্লিক, আমাদের দুই অভিভাবক কমরেড মদন ঘোষ, কমরেড অরিন্দম কুমার, কমরেড নিরুপম সেনের সহকর্মিনী কমরেড চন্দ্রাবতী সেন, কমরেড বন্ধুগণ, আপনারা ইতিমধ্যেই শুনেছেন যে কমরেড নিরুপম সেন প্রয়াত হয়েছিলেন 2018 সালে 24শে ডিসেম্বর।
আমরা ঠিক করেছিলাম যে 24শে ডিসেম্বর তারিখই আমরা এই কর্মসূচি করব। আমরা এটাও ঠিক করেছিলাম যে যেহেতু 2018 সালে স্মরণসভার পর 19 সালে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তারপর থেকে আমরা কোনো কর্মসূচি করিনি। ফলে এবছরের কর্মসূচিতে কমরেড নিরুপম সেনের সবথেকে যিনি রাজনৈতিক সবথেকে কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন, সেই কমরেড প্রকাশ কারাতের উপস্থিতিতেই আমরা আমাদের কর্মসূচির কাজ শুরু করতে চাই। কিন্তু বিশেষ রাজনৈতিক কারণে কমরেড প্রকাশ কারাতের দিন আমরা 24 তারিখে পাইনি। ফলে আমরা 2 তারিখেই নির্দিষ্ট করেছিলাম, আজকের তারিখে নির্দিষ্ট করেছিলাম সেই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত করার। আমরা এটাও ঠিক করেছি এবং এখানে আমরা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সেই ঘোষণাও করতে চাই যে আমরা প্রতিটা বছর এই 24শে ডিসেম্বর তারিখে আমরা কমরেড নিরুপম সেনের স্মরণে কর্মসূচি প্রতিটা বছরই গ্রহণ করব। আমরা এই কর্মসূচির পূর্বে আরেকটা কর্মসূচি আমরা করে এসেছি। এটা হচ্ছে আমাদের পার্টির যে জেলা দপ্তর, সেই জেলা দপ্তরের যে সভাকক্ষ আছে, সেই সভাকক্ষ কমরেড নিরুপম সেনের নামেই কমরেড নিরুপম সেন সভাকক্ষ হিসাবে আজকে তা উদ্বোধন করা হয়েছে। কমরেড প্রকাশ কারাত এই সভাকক্ষটি উদ্বোধন করেছেন। ইতিমধ্যে আপনারা শুনেছেন যে আমাদের পার্টির এই নতুন যে বিল্ডিং, যেখানে যে নতুন যে দপ্তর, এই দপ্তরটা তৈরি করা, এই দপ্তরের ডিজাইন থেকে আরম্ভ করে সব কিছু চিন্তাভাবনায় কমরেড নিরুপম সেনের একটা বড় অবদান ছিল। এবং শুধুমাত্র আমাদের পার্টি এই জেলা দপ্তরই না, বর্ধমান শহরের বহু কিছু যা আমরা চোখের সামনে দেখি, যা দৃষ্টিনন্দন, তার অনেকেই কমরেড নিরুপম সেনের মস্তিষ্ক প্রসূত। এই যে বর্ধমানে আমরা রেলের ওভারব্রিজ যা দেখি, এই ওভারব্রিজ তৈরির সময় কমরেড নিরুপম সেন ছিলেন না, এটা ঠিকই, কিন্তু তার প্রাথমিক ভাবনা, তার ডিজাইন তৈরি করা, এসব ক্ষেত্রে কমরেড নিরুপম সেনের অবদান আছে। আমরা বর্ধমানের দিকে তাকিয়ে আরও যদি দেখতে চাই, তা দেখব বর্ধমান তারামণ্ডল, বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্র, বর্ধমান কৃষ্ণ সায়রের যে পার্ক, এই সবটাকে ধরে বর্ধমান শহরে সাধারণ পর্যটকদের একটা আকর্ষণের জায়গা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রকেও আরও বিস্তৃত করার একটা প্রচেষ্টা কমরেড নিরুপম সেনের ছিলেন। আমরা এটা জানি, আপনারা অনেকেই আমার থেকেও বেশি জানেন নিরুপম দা সম্পর্কে, কিন্তু আমরা জানি কমরেড নিরুপম দা সবসময় চিন্তা করতেন যে আমাদের রাজ্যের বাইরে যারা চলে যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে, চাকরির জন্যে, কাজের জন্যে, চিকিৎসার জন্যে এবং শিক্ষার জন্যে, এই অভিমুখটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা কমরেড নিরুপম সেনের ছিল। এবং যেভাবে আমাদের এই ভবন তৈরি করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা নিয়েছিলেন, এই ক্ষেত্রেও ভূমিকা নিয়েছিলেন। আপনারা একটা কথা বারে বারে আলোচনার মধ্যে এখানে বলাটার প্রাসঙ্গিক হবে যে তিনি চেয়েছিলেন আমাদের রাজ্য থেকে, আমাদের জেলা থেকে বিপুল পরিমাণ মানুষ চিকিৎসার জন্যে অন্য রাজ্যে চলে যান, একটু ভালো চিকিৎসার স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার জন্যে। তিনি এটা চিন্তা করতেন কি করে আমাদের জেলাতে একটা স্বাস্থ্য উপনগরী গড়ে তোলা যায়, যার মধ্যে দিয়ে বিপরীতমুখী করে দেওয়া যাবে, আমাদের রাজ্যের চিকিৎসার জন্য অন্য রাজ্যে যাতে চলে না যায় মানুষ, এখানেই যাতে সেই পরিষেবা পেতে পারে, সেই ভাবনা কমরেড নিরুপম সেনের ছিল। এবং স্বাস্থ্য শুধু তা না, এর সঙ্গী আপনারা জানেন যে কি করে কাজের জায়গার ক্ষেত্রেও যাতে আমাদের রাজ্যকে সেই জায়গায় ধরে রাখা যায়, সে তার জন্যই সিঙ্গুরের প্রকল্প যেমন গোটা রাজ্যের ক্ষেত্রে ছিল, আমাদের রাজ্যের টুকরো টুকরো জায়গায়, শুধু বর্ধমান শহর না, আমাদের এই যুক্ত বর্ধমানের বর্ধমান জেলায় এই ধরনের ছোট্ট ছোট্ট ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে, ছোট্ট ছোট্ট শিল্প এবং কুটির শিল্পের বিকাশের মধ্যে দিয়েও কমরেড নিরুপম সেন সবসময় চিন্তা করতেন এই জায়গাটাকে আমরা কি করে, কাজের জায়গাটাকে কি করে আমরা আমাদের জেলাতে, আমাদের রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জেলাতেও কী করে গড়ে তুলতে পারি, তার একটা প্রচেষ্টা ছিল। সেই একইভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি এটা ভাবতেন। সেই জন্য ইউআইটি তৈরি করার ক্ষেত্রে, তার ক্যাম্পাসিংয়ের ক্ষেত্রে কমরেড নিরুপম সেনের একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কমরেড নিরুপম সেনের ছিল।
আমি নিরুপমদা নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে এখানে চাইছি না। আমরা দেখেছি তার জীবন, আপনারা জানেন, বহু আলোচনা হয়েছে। একজন সৈনিক থেকে একজন সেনাপতিতে তিনি পৌঁছেছিলেন ধীরে ধীরে। 1968 সালে মতাদর্শগত যে প্লেনাম বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই প্লেনামের তার নিজের কথায় সেখানে বর্ধমান ভবনে, যেখানে দায়িত্বে ছিলেন আমাদের নেতৃত্ব পলিট ব্যুরো সদস্যরা, তারা ডাইনিং টেবিলের ওপরে তারা শুয়ে থাকতেন, আর বাইরে পাহারায় থাকতেন কমরেড নিরুপম সেন এবং অন্য সঙ্গীরা। সারারাত তারা বাইরে পাহারা দিতেন। সেই সৈনিক ধীরে ধীরে নিজেকে সেনাপতিতে পরিণত হয়েছিলেন, সাধারণভাবে নয়। অনেক লড়াই, অনেক সংগ্রাম, বারে বারে নিজের নামের পরিবর্তন, আত্মগোপন করে থাকা, তার মধ্যে দিয়ে নিজেকে সেনাপতিতে ধীরে ধীরে পরিণত করার ক্ষেত্রে তিনি পরিণত হয়েছিলেন। আমরা তাকে জানি, আপনারা স্লোগান দিচ্ছিলেন, মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ হিসাবে কমরেড নিরুপম সেনের অবদানের কথা আমরা সকলেই জানি। অনেক বই তিনি লিখেছেন, আমরা অনেকেই পড়েছি সেই বইয়ের কথা, যার মধ্যে দিয়ে তার চিন্তার অনেক প্রকাশ ঘটে, তার মধ্যে দিয়ে তিনি তার যে চিন্তা তা প্রতিফলিত হয়। আমরাও দেখতাম কিভাবে একটা পরিস্থিতিকে কমরেড নিরুপমদা ব্যাখ্যা করতেন সহজভাবে, কিভাবে অর্থনীতিকে ব্যাখ্যা করতেন সহজভাবে। সাধারণ রাজনৈতিক, সাধারণ মানুষের কাছে রাজনীতিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার অবদান আমরা কখনো অস্বীকার করতে পারি না, আমরা ভুলতে পারি না। আজকের এই যে সময়, এই সময় কমরেড নিরুপমদার অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল। যখন দরকার ছিল এই সময়ে সমগ্র আমাদের জেলা সহ গোটা রাজ্য, সমগ্র জাতিকে একটি নির্দিষ্ট অবস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া, প্রকৃত মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজকে বিশ্লেষণ করে শ্রেণী বিরোধগুলির সামনে রেখে কেমন করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়, শ্রেণী সংগ্রামকে কী করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তার কমরেড নিরুপম সেন আজকে তার অভাব আমরা এটা অনুভব করতে পারছি। আমাদের লড়াই, আমাদের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সামনে একটা বড় রাজনৈতিক সংগ্রাম গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের পার্টি, আমরা আজকে নিরুপমদাকে স্মরণ করতে গিয়ে সেই সংগ্রামে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করার, তিনি যেভাবে বলতেন, সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে, সমস্ত প্রচেষ্টাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে, যাতে গ্রামে নতুন করে মানুষের আস্থা ফিরাতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে, যাতে আমরা গ্রামাঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, গ্রামে দুষ্কৃতীদের রাজত্ব কায়েমের বিরুদ্ধে, গ্রামের পঞ্চায়েতে সাধারণ মানুষ তার যাতে অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সেই অধিকার প্রয়োগের সংগ্রামে আমাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা আমাদের পালন করতে হবে। এটাই আমরা আমাদের আজকের কর্মসূচিতে আমরা আপনাদের কাছে নিরুপম সেনকে স্মরণ করতে গিয়ে আমরা সেটা রাখতে চাইছি। আজকে সময় খুব বেশি নেই, খুব কম সময়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাজ শেষ করতে হবে। এখন আজকের যে মূল বিষয় আলোচনার, আপনারা জানেন বর্তমানে আমাদের দেশ, রাজ্য এবং আমাদের কর্তব্য, এ নিয়ে আমাদের পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য কমরেড প্রকাশ কারাত তিনি বক্তব্য রাখবেন। আমি তাকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি, কমরেড প্রকাশ কারাতকে এখানে এসে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। इस सभा के अध्यक्ष कॉमरेड शाहिद हुसैन, मंच पर उपस्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण और साथियों, आज हम कॉमरेड निरुपम सेन की स्मृति में पहला जो लेक्चर सीरीज है उसकी शुरुआत के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूर्वी बर्दवान जिला कमेटी की ओर से ये निरुपम सेन मेमोरियल लेक्चर का सिलसिला शुरू किया गया है और इस पहले लेक्चर में भाग लेने का अवसर मिलने पर मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि कॉमरेड निरुपम सेन
हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में से थे। वो हमारे पार्टी के केंद्र कमेटी और पॉलिट ब्यूरो के सदस्य रहे और पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी के नेतृत्व का एक अहम हिस्सा भी था। और बर्दवान जिले में खास तौर पर उनका जो योगदान रहा है वो बहुत अमूल्य है। एक पार्टी संगठनकर्ता के नाते, एक पार्टी सैद्धांतिक विचारक के नाते, और जब वो प्रशासनिक काम में रहे, मंत्रिसभा में रहे, उन्होंने बर्दवान जिले में जो विकास के लिए भूमिका अदा की वो भी स्मरणीय है। उस सबसे ऊपर कॉमरेड निरुपम सेन एक दृढ़ मार्क्सवादी थे और हमारी पार्टी के वैचारिक और सैद्धांतिक दिशा में तय करने के लिए उन्होंने जो हिस्सेदारी की वो हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा। कॉमरेड निरुपम सेन मार्क्सवाद लेनिनवाद पर उनका अटूट विश्वास था और हमारे पार्टी के राज्य के नेतृत्व में रहते हुए उन्होंने पार्टी शिक्षा के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार्क्सवाद से लैस करने के लिए काफ़ी परिश्रम किया था। तो ऐसे एक अद्भुत हमारे कॉमरेड थे जिनका बहुमुखी गुण थे और योगदान भी था। और मेरे लिए कॉमरेड निरुपम सेन का व्यक्तिगत संबंध छात्र आंदोलन के समय से रहा था। 1973-74 में जब हमारे स्टूडेंट्स फेडरेशन का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था कलकत्ता में, तब हम दोनों जॉइंट सेक्रेटरीज के रूप में चुने गए थे। तब से हमारा काम और हमारे सोच और विचार का आदान प्रदान करना और पार्टी के कमिटियों में बहस करने में और निजी तौर पर कॉमरेड निरुपम सेन से मैंने बहुत कुछ सीखा भी था। तो इसलिए आज इस व्याख्यामाला में उसका उद्घाटन के रूप में पहला भाषण देने के अवसर मिलने पर मैं पूर्वी बर्दवान के जिला कमेटी को आभार व्यक्त करता हूं। मुझसे कहा गया है कि आज हमारे देश की जो हालात है, हमारे देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और पश्चिम बंगाल की जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में कुछ बोलें और उसके साथ साथ हमारी पार्टी और वामपंथ की क्या इसमें भूमिका है, क्या जिम्मेदारी है पूरा करने का, उसके बारे में भी बोलूं। आज जब हमारे देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर हम ध्यान देते हैं तो पहली बात समझने का ये है कि
पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों से, जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी लोकसभा चुनाव में और वो सत्ता में आए हैं, तब से लेके ये पिछले 8.5 वर्षों में जो प्रयास किया गया है और आरएसएस और बीजेपी ने जो प्रोजेक्ट लागू करने की कोशिश की है, वो सिर्फ सत्ता में रहना और उसमें बरकरार रख के लंबे समय तक राज करने का नहीं है। उससे और बहुत बड़ा उनका एक योजना है, वो है भारत के जो आज संवैधानिक और राजनीतिक स्वरूप है उसको बदलना है और उसको बदल के हमारे देश में एक हिंदुत्व के आधार पर एक राष्ट्र कायम करना। वो राष्ट्र में आज जो हमारे देश में जो संविधान के तहत जो नागरिकों का अधिकार है, संविधान के तहत जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें हमारे देश के सत्ता के अलग अलग अंग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो और पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, इस सब को बदल के एक मेजॉरिटेरियन स्टेट कायम करना। इसका मतलब जो हिंदू धर्म पर विश्वास रखने वाले का बहुमत है, वो बहुमत का राज कायम करना, जिसका मतलब है कि हमारे देश में जो हम जनतंत्र और सेक्युलरिज्म के जो सिद्धांत को हम समझते हैं कि हमारे संविधान का बुनियाद है, उसको पूरी तरह बदलने का उनका इरादा है। और पिछले 8.5 वर्षों में ये हिंदू या हिंदुत्व के राष्ट्र का जो प्रोजेक्ट है, उसको अमल में ले आने के लिए वो लगातार प्रयास ही नहीं किया है, उसमें कदम कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है। इसके इस ताकत के खिलाफ आज सत्ता में जो है, वो पहले से हमारी पार्टी ने चेतावनी दी थी। हमारे पार्टी कार्यक्रम में हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य पूंजीवादी पार्टी नहीं है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुर्जुआ पार्टी। उसकी विशेषता है कि ये एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नियंत्रण, जिसका कंट्रोल दूसरे एक संगठन के हाथ में है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए ये पार्टी को खड़ा किया है, भारतीय जनता पार्टी। उसके पहले 50 के दशक में उन्होंने एक पार्टी को खड़ा किया था, भारतीय जनसंघ, और जनसंघ के जगह पर 80 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो ये पार्टी एक साधारण कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, जो चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के बाद सत्ता में आने के लिए प्रयास करने के बाद सफल होती है। और जैसे दूसरी पूंजीवादी पार्टियां हैं, वो पूंजीवादी पार्टियां शासक वर्ग के हितों को लागू करने के लिए सत्ता में रह के सरकार में बैठ के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का वर्ग चरित्र
बड़े पूंजीपतियों के और भूस्वामियों के पार्टी के रूप में ही है। उन्हीं वर्गों को प्रतिनिधित्व करता है और जब वे सत्ता में है तो इन्हीं वर्गों के हितों को पूरा करती है। लेकिन इतना ही नहीं है, ये परिभाषा करना काफी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वर्गीय हित तो ये है, काम ये है, लेकिन उसके अलावा उनका और एक व्यापक मंशा है, उद्देश्य है। वो है हमारे देश को, भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में परिवर्तन करना। ये आरएसएस का मूल लक्ष्य है। 1925 में जब उनकी स्थापना हुई तब से लेके आरएसएस लंबे दृष्टिकोण से एक हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए काम करती आई है। और जैसे हमारे पार्टी के कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि अगर वो सरकार में, केंद्र सरकार में आती है तो सरकार के संस्थाओं को, सरकार के अधिकारों को इस्तेमाल करेंगे ये हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए, हिंदुत्व के सिद्धांत को संवैधानिक सिद्धांत बनाने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये प्रक्रिया अभी शुरू हो चुका है। अगर ये मूल बात हम भूल जाते हैं या उसकी अवहेलना करते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को का कभी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उसको सही तरीके से काउंटर नहीं कर पाएंगे। और आज हमारे देश में पिछले 8.5 वर्षों का अनुभव क्या है कि ये आरएसएस बीजेपी 2014 के चुनाव के बाद 5 साल राज करने के बाद 2019 में और ज्यादा बहुमत प्राप्त करके सत्ता में दोबारा आई है। और उनके एकमात्र बहुमत है, उनके कोई सहयोगी पार्टियों के साथ मिलके बहुमत की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अपना राजनीतिक जो ताकत है उसको और मजबूत कर दिया है 2014 और 19 के बीच में। और 2019 के बीच में के बाद जब सरकार में आई तो और अग्रसर और हमलेवार तरीके से उन्होंने हिंदुत्व की नीतियों को लागू करने के लिए आगे बढ़ा है। पहले से आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारे 3 बुनियादी मुद्दे हैं, 3 कोर इश्यूज हैं हमारे। एक तो धारा 370 आर्टिकल 370 द कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए लागू है उसको खत्म करना, ताकि जम्मू एंड कश्मीर को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। दूसरा मुद्दा उनका था अयोध्या में राम मंदिर बनाने का। और तीसरा मुद्दा उनका है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक समान संचार संहिता चलाना। पहला मुद्दा तो उन्होंने पूरा कर दिया। 2019 के चुनाव के बाद चंद महीनों के बाद उन्होंने पार्लियामेंट में ये संशोधन किया कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर के विशेष दर्जा जो था, जिनको कुछ स्वायत्तता दिया गया था, उसको खत्म किया। और उसका कारण ये है, सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर ही एक राज्य है हमारे देश में जहां मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश है या राज्य है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो उसको कोई विशेष दर्जा
नहीं मिलना चाहिए और पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि वहाँ के जो आज कॉम्पोजिशन है जम्मू एंड कश्मीर का, जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसके लिए एक दरवाज़ा खोल दिया है 370 ख़त्म करने के बाद। दूसरा मुद्दा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, वो भी काम अभी चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद उसका उद्घाटन किया, उस निर्माण के काम का, और वो कहते हैं कि 2024 शुरुआत में मंदिर तैयार हो जाएगा, मंदिर को खोलेंगे। उसके लिए क्या क्या किया गया, किस तरह पहले बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, किस तरह राम जन्मभूमि आंदोलन को चला के पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और ध्रुवीकरण कराया गया, जिसके बल पर उन्होंने पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक असर जमाया। ये सब हम जानते हैं इतिहास में, लेकिन हमें समझना चाहिए अभी ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं, उन राज्यों में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले आने के लिए अभी कमिटियां बिठाए हैं, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम उसके लिए उचित जो है कानून भी ले आएंगे। तो ये 3 कोर इश्यूज के अलावा अभी उनका राजनीतिक बुनियादी मकसद क्या है? हम समझते थे पहले भारतीय जनता पार्टी जो है सांप्रदायिक तनाव और दंगे को इस्तेमाल करते हैं चुनाव के समय। जब भी चुनाव होता है उसके पूर्व जगह जगह पर आरएसएस और बीजेपी के लोग कोई न कोई मसला उठा के वहाँ सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक दंगे करके ध्रुवीकरण करते थे, पोलराइजेशन करके फिर चुनाव में फ़ायदा उठाते थे। तो लोग समझते थे कि ये सिर्फ चुनाव के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ये सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, सांप्रदायिक जहर फैलाना, नफरत फैलाना, ये काम 24 घंटे साल के 365 दिन लगातार वो चलाते हैं। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में जाएंगे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, दक्षिण भारत में कर्नाटक हो, आप देखेंगे कि रोज कुछ न कुछ सवाल उठाया जाता है और मुस्लिम समुदाय को निशाना बना के कोई न कोई ऐसे मुद्दे उठाया जाता है जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और गहराई में ले आने के लिए। कर्नाटक जैसे राज्य में जो पहले वहाँ उत्तर भारत में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है उस तरह का कोई परंपरा नहीं था, आज उस कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तनाव पैदा करने के लिए वहाँ काम किया गया है। चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे वो हलाल का सवाल हो, चाहे वो लव जिहाद का सवाल हो, हर तरह से ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिससे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा सकता है और उन पर कोई न कोई रूप में उनके ऊपर आक्रमण या हमला किया जाए। यही हाल है उत्तर प्रदेश में और यही हाल है मध्य प्रदेश में। और अभी ये सांप्रदायिक जहर इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो सरकारी है उसमें मुस्लिम जो
कॉलेज के लेक्चरर हैं या टीचर है या प्रिंसिपल है, उनके खिलाफ मुहिम चलाया जाता है। कोई न कोई बेबुनियाद जो है एलिगेशन लगा के उनको हटाने की मांग की जाती है। और ये आरएसएस के ही छात्र जो संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं। और अभी इंदौर में वहाँ के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के 4 मुस्लिम प्रोफेसर और मुस्लिम प्रिंसिपल को अभी सस्पेंड किया गया है और उनके खिलाफ केसेस लगाया गया है। तो ये एक साधारण बात बन जा रहा है कि किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के राज में ये स्थापित करना चाहते हैं कि मुस्लिम जो है वो दूसरे दर्जे के नागरिक है। संविधान में सबको धर्म या नस्ल या जेंडर या कोई विशेषता के बिना सबको समान अधिकार है, इक्वल राइट्स है। लेकिन हिंदू राष्ट्र में ये नहीं होगा। अल्पसंख्यकों को सेकंड क्लास सिटीजन्स के रूप में रहना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि हिंदुत्व का प्रभुत्व है, हम उसको मानते हैं और उसी के चौकटी में फ्रेमवर्क में माइनॉरिटीज को यहाँ जीने का रहने का अधिकार होगा। ये वास्तविकता में, रियलिटी में मध्य प्रदेश और गुजरात और उत्तर प्रदेश में अभी जमीनी तौर पर ये रियलिटी को हम देख सकते हैं। तो हिंदुत्व का जो लक्ष्य है और आरएसएस और बीजेपी का प्रयास क्या है, सिर्फ चुनाव जीत के कुछ सरकार में रह के राज करने का नहीं है। पूरे देश के जो बुनियादी चरित्र है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल सिस्टम का जो आज चरित्र है, उसको बदलने का है। और उसको पूरा करने के लिए वो लंबे समय का योजना बनाया है, जिसमें आज संविधान को सामने रखते हुए उसके पीछे, उसके भीतर घुस के, संवैधानिक संस्थाओं के अंदर घुस के उसका अंदरूनी चरित्र को बदलने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। और उसी प्रोजेक्ट के हिस्से बन के हम देख रहे हैं कि अभी शिक्षण संस्थाओं में हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने के लिए अभी योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। अगर हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यूजीसी, वो यूजीसी की ओर से ही अभी दिशा निर्देश आ रहा है कि इस तरह के बातों को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरह के सब्जेक्ट्स को, इस तरह के इतिहास को। क्योंकि अगर आप अपने प्रभुत्व, जो अंग्रेजी में हम कहते हैं हेजेमनी, एस्टैब्लिश करना है, तो हेजेमनी सिर्फ इलेक्टोरल हेजेमनी नहीं है, सिर्फ चुनाव में बहुमत प्राप्त करने का नहीं है, पूरे समाज पर अपना प्रभुत्व कायम करने का है। तो आरएसएस और बीजेपी अभी शिक्षा की प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम और संस्कृति, कल्चर पर ज़्यादा विशेष ध्यान दे के एजुकेशन सिस्टम को बदलना और संस्कृति में क्या एक्सेप्टेड है, क्या परमिसिबल है, चाहे वो नॉवल लिखने का काम हो, फिल्म बनाने का काम हो, ड्रामा हो, कुछ भी क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, वो तय करेंगे कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। और जो वो रिजेक्ट करते हैं, इनकार करते हैं, उसको लेबल किया जाता है कि ये एंटी नेशनल है। ये सोच भी एंटी नेशनल है, ये लिखावट भी एंटी नेशनल है, ये इतिहास भी एंटी नेशनल है। ये करार दे के इनको कंडेम करते हैं। और सिर्फ कंडेम ही नहीं करते हैं,
इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है कानूनी और उनको जेल भी भेजा जाता है। आज भीमा कोरेगांव केस में महाराष्ट्र में जो केस लगाया गया था उसमें 16 लोग जो है अभी 4 लोग अभी जमानत में आए 2 साल के बाद। उसमें लेखक भी है, बुद्धिजीवी है जो आरएसएस और हिंदुत्व के विचार को नहीं मानते हैं। उसी के कारण उनको सजा दिया गया है। उनको नक्सलवादी है वगैरह कह के झूठे आरोप लगा के केस लगा के अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में जेल में डाला गया है। तो एक तरफ अपने सत्ता के तमाम साधन को इस्तेमाल करना और जो संस्थाएं हैं, जैसे मैंने कहा शिक्षण संस्थाएं हैं और सांस्कृतिक जो संस्थाएं हैं, उस सब को इस्तेमाल करके एक नया हिंदुत्व का जो कल्चर है, हिंदुत्व का जो एजुकेशन सिस्टम है, हिंदुत्व का जो हिस्टोरिकल राइटिंग है, ये सब प्रमोट करने के लिए अभी इंस्टीट्यूशनली दे हैव टेकन स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट दिस। तो ये सब देखने से ये सवाल सिर्फ नहीं है कि एक ऐसे तानाशाही पार्टी सत्ता में आई है। तानाशाही प्रवृत्तियों की राज और पार्टी हम पहले भी देखे हैं। इमरजेंसी के ज़माने में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो भी जनवाद पर हमला हुआ था, तानाशाही निज़ाम कायम हुआ था, लेकिन वो एक सीमित मकसद से था। इंदिरा गांधी ने सोचा कि मेरे राज्य के लिए, मेरी सरकार के लिए खतरा है, विपक्षी पार्टियां मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, तो उसको ख़त्म करना है, उसको दबाना है, और उसी बहुत सीमित मंशा के कारण इमरजेंसी थोपा गया था। लेकिन ये कोई छोटी मोटी संघर्ष नहीं है आरएसएस और बीजेपी के लिए। उनका ये है कि सत्ता को किस तरह इस्तेमाल करें जिससे आज की जो जनतांत्रिक सेक्युलर जो ढांचा है उसको खत्म करके एक नया मेजॉरिटेरियन स्टेट, जिसमें चाहे वो जनतंत्र हो चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, उसके पूरी तरह एसेंस जो है उसको खत्म किया जाएगा। तो उसके लिए जो वो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, ये सब जानते हैं। जो भी जनतंत्र, डेमोक्रेसी, जो भी सेक्युलरिज्म को वैल्यू करते हैं वो सब यही बात कहेंगे कि इनके खिलाफ हमारी राजनीतिक संघर्ष होनी चाहिए। लेकिन वो संघर्ष किस तरह का हो? हमारे देश की जो गैर भाजपा पार्टियां हैं, जो गैर वामपंथी पार्टियां हैं, जो ज़्यादातर पूंजीवादी पार्टियां हैं, उनके लिए ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ने में अभी कोई वैचारिक और सैद्धांतिक स्पष्टता नहीं है। बहुत सी पार्टियां सोचती है कि जनता के बीच में अभी ये हिंदूवाद और हिंदुत्व काफी चल चुका है, तो उसके खिलाफ लड़ना हमारे लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि जनता के बीच में हिंदुत्व का जो सोच है, समझ है, वो फैल चुका है। तो कुछ पार्टियां हैं जो सोचती है कि हमें दिखाना पड़ेगा कि हम बेहतर हिंदू हैं इनसे, हम ज़्यादा हिंदू होने से ही हम उनको काउंटर कर सकते हैं। और दिल्ली में हमारी वहाँ की सरकार है, आपकी सरकार, उसका नेता है केजरीवाल। केजरीवाल कोई सांप्रदायिक हिंदू नहीं है, लेकिन गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए गए तो सोचा कि अगर हमें भाजपा और मोदी के खिलाफ वहाँ लड़ना है तो ये दिखाना है कि हम उनसे भी बेहतर हिंदू हैं। तो उन्होंने वहाँ बयान दिया
कि हम हिंदू हैं तो हम भी हिंदुत्व करते हैं। उन्होंने कहा करेंसी नोट में लक्ष्मी और दुर्गा का फोटो क्यों नहीं है उसमें? तब अगर फोटो होगा तो हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से प्रगति होगी। अगर भगवान के फोटो हो तो इससे फायदा होगा हमें। तो ये केजरीवाल भी करते हैं, कांग्रेस भी कर रही है, और यूपी में हम देख रहे हैं कि वहां की मुख्य विपक्षी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वो सबको हिंदुत्व के खिलाफ बोलने से कतराते हैं। अभी इससे वो इस तरह के संघर्ष नहीं किया जा सकता है। तो पहली बात यह है कि हमारे सामने बड़ी चुनौती क्या है? हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि अगर हम सेक्युलरिज्म को डिफेंड करना चाहते हैं, या बंगाल में भी बाद में आऊंगा, लेकिन बंगाल में भी टीएमसी का रुख क्या है इसके बारे में हम जानते हैं कि सेक्युलरिज्म की रक्षा की बात करना है तो सेक्युलरिज्म हमारे लिए सिर्फ ये नहीं कि सब धर्मों को समानता दिया जाए और हमारी सरकार सब धर्मों को आज़ादी दे, ये इतना ही नहीं है। सेक्युलरिज्म हमारे लिए हमारी आवश्यकता है। अगर हमारे मजदूर वर्ग, हमारे किसान, हमारे खेती और मजदूर, हमारे देश की मेहनतकश जनता की एकता हमें कायम रखना है तो सेक्युलरिज्म की जरूरत है। हमारे लिए सिर्फ सेक्युलरिज्म कोई एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल नहीं है। तो उसके लिए लड़ना है तो हिंदुत्व का जो विघटनकारी, हिंदुत्व का जो प्रतिक्रियावादी और हिंदुत्व का जो जन विरोधी चरित्र है, उसको जनता के सामने पर्दाफाश करने की जरूरत है, एक्सपोजर करने की जरूरत है। क्योंकि ये हिंदुत्व आज हमारे देश में इसलिए कायम है, इसलिए मजबूत हो रहा है क्योंकि उनके पीछे कौन ताकत है? हमारे देश के शासक वर्ग उसके पीछे है। हमारे देश के शासक वर्ग का सबसे प्रभावशाली हिस्सा जो है, ताकतवर हिस्सा जो है, जो हमारे देश के बड़े पूंजीपति है, जो हमारे देश के इजारेदार पूंजीपति है, उनके साथ हिंदुत्व का गठबंधन है। हिंदुत्व और हमारे देश के बड़े पूंजीपतियों के बीच का जो गठबंधन है, ये वर्गीय दृष्टिकोण से हमें समझना है। ये उनका ताकत है। लोग आमतौर पर कहते हैं अंबानी और अदानी के दोस्त है मोदी, या अंबानी और अदानी इसलिए वो आगे बढ़ रहा है, उनकी पूंजी इतने तेजी से विकसित हो रहा है क्योंकि ये मोदी सरकार के क्रोनी कैपिटलिस्ट है, उनके दरबारी पूंजीपति है। ये एक हद तक सच है, लेकिन सिर्फ अदानी और अंबानी इस सरकार को समर्थन नहीं करते हैं। पूरे बड़े पूंजीपति वर्ग, हमारे देश के कॉरपोरेट्स पूरी तरह से इन सरकार को समर्थन करते हैं और उन्होंने तय किया है कि हिंदुत्व के आधार पर अगर भाजपा अपने राजनीतिक प्रभाव को जमा सकते हैं, उससे हमें फायदा होगा, हमारे वर्ग के लिए फायदा होगा। तो द कॉर्पोरेट्स ऑफ आवर कंट्री, द बिग बिजनेस ऑफ इंडिया supports Hindutva, thinking Hindutva is the basis on which this government can consolidate itself and therefore serve their interests also. तो आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पीछे ये बड़े पूंजीपतियों का पूरा ताकत है, वो साधन उनको पूरी तरह मिलता है। भारतीय जनता पार्टी आज ये
कहती है, बोस्ट करते हैं कि वी आर द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। तो ये पॉलिटिकल पार्टी या संगठन को चलाना, उनके हजारों हजारों कार्यकर्ताओं को फाइनेंस करना, इन सब के लिए साधन कहां से आ रहा है? ये अंबानी और टाटा और बिरला और जितने भी हमारे देश के कॉर्पोरेट्स हैं वो इनको फाइनेंस करते हैं। उसके लिए तरीका भी उन्होंने ढूंढा है। इस सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स शुरू कर दिया है, जिससे कोई भी कंपनी भारतीय जनता पार्टी को पैसा दे सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, लेकिन उसका कोई नाम अकाउंट में नहीं आएगा। ये गुप्त रूप से दिया जा सकता है, ये कानूनी बन गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी तक इशू हुआ है, अगर 10,000 करोड़ इशू हुआ है तो 9,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ये जो हिंदुत्व का और कॉर्पोरेट का नेक्सस है, इसके खिलाफ लड़ना है। तो जो सिर्फ कहते हैं कि हम जनतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जनता के बुनियादी अधिकारों को रक्षा करना चाहते हैं और उसके लिए लड़ेंगे, वो लड़ाई लड़ने से सफल नहीं होगा जब तक आप इस सरकार की न्यू लिबरल पॉलिसीज जो है, नव उदारवादी जो नीतियां है, उसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। क्योंकि ये नव उदारवादी नीतियों को ही समर्थन करके ये कॉर्पोरेट्स भाजपा और आरएसएस को अपने हिंदुत्व के एजेंडा को भी समर्थन दे रहे हैं। और ये नव उदारवादी नीतियों के बारे में ज़्यादा मैं आज नहीं बोलना चाहता हूँ। हमारे देश में 3 दशक से ये न्यू लिबरल पॉलिसीज लागू है। 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार ने ये आर्थिक सुधार के नाम में उदारीकरण का प्रक्रिया शुरू किया, उदारीकरण का नाम उस समय दिया गया, लेकिन ये असली मायने में न्यू लिबरल पॉलिसीज का शुरुआत था। और उस न्यू लिबरल पॉलिसीज का चरित्र सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में हमने देखा है कि जो फाइनेंस कैपिटल है, वित्तीय पूंजी है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, उस वित्तीय पूंजी के इंटरेस्ट में ही सब जगह यह न्यू लिबरल पॉलिसीज लागू किया गया है, जिससे निजीकरण का दौर शुरू हुआ। निजीकरण का मतलब सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, समाज के हर पहलू में निजीकरण होना चाहिए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बुनियादी सेवाओं में, सबका निजीकरण होना चाहिए। और स्टेट का जो रोल है इकोनॉमी में, सोसाइटी में, वो नियंत्रण स्टेट का नहीं होना चाहिए, डीरेगुलेशन होना चाहिए। और पूरे देश के जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, वो उस देश के बड़े पूंजीपतियों को हवाला किया जाए, जिसका परिणाम है कि मजदूर वर्ग पर और मेहनतकश पर हमले तेज होते हैं। जैसे उनका वेतन, अगर वेतन बढ़ोतरी के लिए कोई संघर्ष होता है तो उसको दबाया जाता है। और जिस तरह इकोनॉमी का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, उससे जो वर्किंग क्लास या लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में, लेबर का इनकम का शेयर लगातार कम होते जाता है और उसके कारण असमानता बढ़ती जाती है, इनइक्वालिटीज बढ़ती जाती है। और जहां भी न्यू लिबरल पॉलिसीज लागू हुआ है, हमने देखा है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब और आम लोग और गरीब होते जाते हैं। और ब्राज़ील, हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका, ये सब देश जो
न्यूली डेवलपिंग इकोनॉमीज कहा जाता है, इनमें असमानताएं सबसे ज़्यादा बड़ा है न्यूलिबरल पॉलिसीज के कारण। तो ऐसे परिस्थितियों में आरएसएस और बीजेपी पूरी तरह हिंदुत्व का प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए वो सोचते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र में ये बड़े पूंजीपतियों का राज भी होगा, हिंदू राज भी होगा और बड़े पूंजीपतियों का भी राज होगा। इसका मतलब हिंदुओं में भी हिंदू बड़े पूंजीपतियों को ही लाभ होने वाला है, आम हिंदुओं के लिए मेहनतकश जो हिंदू है उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये जो लड़ाई है, संघर्ष है हमारे सामने, जब हम कहते हैं कि हमें आज जनतंत्र पर जो हमला है, जो एकाधिकारी खतरा है, अथॉरिटेरियन डेंजर है, उसके खिलाफ लड़ना है। मार्क्सवादियों के लिए लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक राइट्स तक सीमित नहीं रह सकता है। वो तभी सफल होगा जब हम न्यू लिबरल पॉलिसीज के खिलाफ संघर्ष करेंगे। तभी हमारे देश की जनता की जो वर्किंग क्लास है, जो किसान है, जो खेतिहर मजदूर है, बहुत व्यापक हिस्से जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, ये सब के खिलाफ जो बहुत भारी हमला है, उनके आजीविका पर, लाइवलीहुड पर हमला है, उनको जब हम नहीं मोबिलाइज कर पाएंगे इन पॉलिसीज के खिलाफ, अपने आजीविका के रक्षा के लिए, इन डिफेंस ऑफ देयर लाइवलीहुड, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उनको मोबिलाइज करके संयुक्त आंदोलन में नहीं उनको जोड़ेंगे, उनको लामबंद नहीं कर पाएंगे, ये जनवाद के लिए लड़ाई और जनवादी अधिकारों की लड़ाई को भी हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये हमारे सामने हमारा जो आज का जो जिम्मेदारियां है या कर्तव्य है, वो कर्तव्य ये है कि ये दोनों संघर्षों को कैसे हम जोड़ें, उसको इंटरलिंक करें, उनको साइमल्टेनियसली कैसे कंबाइन करें। अगर हम अपने बेसिक क्लासेस की जो लड़ाई है उसको आगे नहीं चला पाएंगे, ये बाकी डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की लड़ाई सफल नहीं होने वाला है, वो अधूरा रह जाएगा। और अगर हम समझते हैं कि ये चुनावी क्षेत्र की लड़ाई है, इलेक्टोरल स्ट्रगल से ही पूरा होगा, वो भी पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक हिंदुत्व के खिलाफ लोग कैसे आ सकते हैं, जब वो ये पहचानेंगे कि ये हिंदुत्व के जो सरकार है ये मजदूर विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये खेतिहर मजदूर विरोधी है, इन सब के हितों के लिए हम लड़ेंगे। उस लड़ाई के माध्यम से ही वो पहचान पाएंगे आरएसएस और बीजेपी का जो वर्ग चरित्र है, और उसके हिंदू राज की बात करते हैं लेकिन बड़े पूंजीपति और बड़े लोगों के पार्टी है। तो ये संघर्ष हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जब हम हमारे देश में ये लड़ाई आगे दोनों कंबाइन करके चलाने के लिए हम सोचते हैं, तो ये भी बात है कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, और पश्चिम बंगाल में खास तौर पर परिस्थितियां अलग है, क्योंकि यहाँ की जो शासक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस की पार्टी, ये पार्टी अभी 1 दशक से ज़्यादा राज करती आई है। इस पार्टी का चरित्र है, यहाँ एक क्षेत्रीय पार्टी है पश्चिम बंगाल का। दूसरे राज्यों में कोशिश की है फैलने के लिए, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने उसकी कोई खास सफलता नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, उनका जो बंगाल में उनका जो
उत्पन्न होने की परिस्थितियां है वो वामपंथी और कम्युनिस्ट आंदोलन के विरोधी के रूप में उसके खिलाफ लड़के उसको खत्म करना या दबाने के लिए ये पार्टी की भूमिका मुख्य रही है। तो शुरू से उनके एक एंटी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है कि जब हम राष्ट्रीय स्तर पर बताते हैं कि शासक पार्टियां ऑथोरिटेरियन है। ऑथोरिटेरियन का मतलब एंटी डेमोक्रेटिक, जनवाद को दबा के ही वो अपने राजनीति और शासन चलाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें टीएमसी उस कैटेगरी में पड़ता है कि वो जो ऑर्डिनरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके नॉर्म्स को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, उस पर हमला करते हैं और साधारण पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो होता है उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो एक एंटी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है। दूसरा, अभी 2 टर्म सरकार में रहने के बाद उनका एंटी पीपल कैरेक्टर भी क्लियर साफ हो चुका है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो भ्रष्ट तरीके होते हैं, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, मैल प्रैक्टिसेस है, वो सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक विशेषता रहा है केंद्र में रह के भी और जहां राज्यों में वो सरकार चलाते हैं कि उन्होंने ये टारगेटेड स्कीम्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके बेनिफिशियरीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद चुनाव के टाइम अभी अब देखेंगे कि जहां भी चुनाव होता है जो उनके विभिन्न स्कीम्स है उसके बेनिफिशियरीज की मीटिंग बुलाते हैं। अभी त्रिपुरा में चुनाव होने वाला है, वहां आवास योजना का हो, दूसरे स्कीम्स हो, महिलाओं के लिए कल्याण के लिए स्कीम हो, बाकी जितने भी स्कीम उनके सब बेनिफिशियरीज की मीटिंग बुला के कहते हैं कि ये हम आगे चलाएंगे अगर आप हमें दोबारा चुनेंगे, हमारे वोट नहीं देंगे तो आपको स्कीम नहीं मिलेगा। इस तरह की धमकी भी देते हैं। लेकिन यहाँ दूसरे तरीके का है। यहाँ तो ये सब पैसा जो है वो एक्चुअल बेनिफिशियरीज को कभी नहीं पहुंचता है। जो भी योजना है वो योजना का पहले बेनिफिशियरीज तो हो तभी उसको फिर आप मोबिलाइज कर पाएंगे। जैसे अभी यहाँ वो आवास योजना है, प्रधानमंत्री का आवास योजना का घर बनाने का जो योजना है वो टीएमसी ने पूरी तरह यहाँ उसमें धांधली किया है। तो ये कैरेक्टर ऑफ द पार्टी को दिखाता है कि अगर अपने पार्टी को आप सिर्फ एंटी कम्युनिस्ट, एंटी लेफ्ट बेसिस पर संगठित करते हैं, फिर सरकार में आते हैं, तो ये जिसको हम कहते हैं लुम्पनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वो हर चीज़ में लुम्पनाइजेशन हो जाता है कि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में भी लुम्पनाइजेशन होता है, राजनीति में तो है लुम्पनाइजेशन। तो ये करप्ट क्रिमिनल नेक्सस बन जाता है। तो ये ऐसी पार्टी या फोर्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के खिलाफ लड़ नहीं सकते हैं। असली मायने में सैद्धांतिक तौर पर, वैचारिक स्तर पर और राजनीतिक तौर पर वो इनके खिलाफ काउंटर करके फाइट करने के लिए वो कैपेसिटी नहीं होगा। हमेशा आप देखेंगे कि उनका आपस में ये बंगाल के विशेष परिस्थितियों में ऐसे बाइनरी या पोलराइजेशन चाहते हैं जिससे सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट को और किस तरह मार्जिनलाइज किया जाए, वही मकसद से उनका कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन होता है। तो यहाँ की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का खतरा जो आज पूरे देश में मुख्य खतरा है, आरएसएस का खतरा है जो देश के लिए, पूरे देश के लिए मेन खतरा है, उनके खिलाफ लड़ने का प्राथमिकता बंगाल में भी है। लेकिन वो लड़ाई आप
टीएमसी के खिलाफ लड़के ही कर सकते हैं, दोनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और एक के प्रति नरम रुख अपनाना किसी न किसी तरीके से वो यहाँ के वामपंथी आंदोलन के लिए, यहाँ के वामपंथी जनवादी आंदोलन के लिए हानिकारक होगा। तो ये इसीलिए पश्चिम बंगाल में विशेष तौर पर ये कठिनाई है, डिफिकल्टी है कि ये दोनों फोर्सेस जो है, एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी पीपल, सिर्फ ये है कि अखिल भारतीय पैमाने पर आरएसएस और बीजेपी का खतरा ज्यादा है और उसी ताकत उनकी जो है अखिल भारतीय पैमाने पर उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ टीएमसी के काले कारनामों के कारण टीएमसी ने जिस तरह पिछले एक दशक में यहाँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सप्रेस किया है, लेफ्ट और डेमोक्रेटिक राइट्स को, मूवमेंट को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो गैर जनवादी माहौल तैयार किया है, उसका पूरा फायदा उठाया है आरएसएस और बीजेपी ने यहाँ घुसपैठ करने के लिए। लेकिन वो खतरा बीजेपी का हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह यहाँ पिछले एक दशक से ये आतंक राज चलाया है, वही तरह का आतंक बीजेपी ने त्रिपुरा में चलाया जब वो सरकार में आए। तो जो क्लास कैरेक्टर का सवाल है कि जहाँ लेफ्ट है, लेफ्ट के खिलाफ ये पूंजीवादी पार्टियों की जो इंटरेस्ट है वो ऐसे ही होगा जिससे दे हैव टू रिजॉर्ट टू रिप्रेशन, दमन और आतंक के माध्यम से ही वो लेफ्ट के खिलाफ लड़ सकते हैं। और जितना ज़्यादा इस तरह के एंटी लेफ्ट और एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप्स लेंगे, उतना ज़्यादा वही माहौल का फ़ायदा उठा के आरएसएस और बीजेपी भी अपने पैर जमाने के लिए और प्रभाव बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज के परिस्थितियों में इन जिन प्रदेशों में अभी भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो या गुजरात में हो, वहाँ जो हमारी दिशा है काम का, हमारी टैक्टिकल लाइन जो है वो यही होगा कि जितने भी व्यापक एकता कायम हो सकता है बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, सेक्युलर फोर्सेस है, उनको रैली करने के लिए, वो सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, वहाँ जो वर्किंग क्लास के मूवमेंट है, किसानों के संघर्ष है, छात्रों के संघर्ष है, महिलाओं के संघर्ष है, आदिवासियों के संघर्ष है, दलितों के संघर्ष है, अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं, उस सब की रक्षा के लिए जो मूवमेंट है उसको जितना व्यापक किया जा सकता है, ये उस पर निर्भर होगा हम एक वैकल्पिक ताकत कैसे तैयार करें। सिर्फ चुनावी गठबंधन और टैक्टिक से कोई विकल्प बीजेपी के खिलाफ बनने वाला नहीं है। इसीलिए एक अखिल भारतीय पैमाने पर अभी पिछले 4-5 वर्षों से, 2018 से अगर कहे 2019 के चुनाव के पहले से ही ये कोशिश हुई है कि एक तरफ हमारे जितने भी बेसिक क्लासेस के ऑर्गेनाइजेशंस और मूवमेंट है उसको कोऑर्डिनेट करके, तालमेल करके यूनाइटेड स्ट्रगल्स कैसे डेवलप किया जाए। तो हमने देखा जब किसान आंदोलन, 1 साल का ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला, तो विशेष नई बात यह थी कि ट्रेड यूनियंस के संघर्ष और किसान आंदोलन में आपस में तालमेल स्थापित हुआ। There was coordination between the trade unions movement and the किसान मूवमेंट। जो ऑल इंडिया स्ट्राइक कॉल्स हुए थे नवंबर 26 में
20 2020 में 19 में, उसमें किसान आंदोलन ने अपने ओर से अपना कॉल दिया था और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने जनरल स्ट्राइक का कॉल दिया था। उसी से शुरू हुआ था दिल्ली चलो का संघर्ष का आह्वान 26 नवंबर से। तो ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स और स्ट्रगल जो ऑल इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, उसको और नीचे स्तर पर स्टेट्स में भी हमें डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाला है पार्लियामेंट में। अभी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है। इसका मतलब क्या है कि बिजली का उत्पादन और जनरेशन और ट्रांसमिशन में तो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, उसको शुरू कर दिया है, लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूशन में, बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करने के लिए ये बिल आ रहा है। इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है आम लोगों पर। बिजली का बिल बढ़ने वाला है, किसानों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, और बिजली क्षेत्र के जो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड्स है, एजेंसीज है, उसके लिए भी खतरा पैदा होने वाला है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें किसान जो इस आंदोलन के टाइम में ही इसका विरोध किया था, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, और पावर सेक्टर में जो यूनियंस है, तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस मिलके इसको एक बहुत बड़ा इशू बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत से मुद्दे आने वाले हैं जिसमें किसान मजदूर एकता या किसान मजदूर संयुक्त एक्शंस को बढ़ाने के लिए अभी संभावनाएं बढ़ने वाला है। तो राज्यों में ये एक तो स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स को विकसित करने का और यूनाइटेड स्ट्रगल्स डेवलप करने के लिए जो किसान आंदोलन और ट्रेड यूनियन के जॉइंट एक्शन से हमें एक्सपीरियंस है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत आगे पॉसिबिलिटीज है। उसके साथ साथ राजनीतिक तौर पर कोई ऑल इंडिया पैमाने पर आज ये सोचना, जैसे ये ऑपोजिशन में जितने भी पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, उसको सब एक हो जाना चाहिए। ये अच्छी बात है, अच्छी सोच है, नारा अच्छा है, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और ये सब क्षेत्रीय पार्टियां दूसरे ऑल इंडिया पार्टीज के साथ तालमेल करने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। तो हर राज्य में वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितना व्यापक वहाँ एकता कायम हो सकता है, वो उस तरह के मंच या प्लेटफॉर्म तैयार करने की ज़रूरत है। जैसे अभी बिहार का अनुभव है कि भाजपा अलग थलग हो चुका है, बाकी सब पार्टियां इकट्ठे हो चुके हैं नीतीश कुमार की पार्टी अभी महागठबंधन में आने के बाद। तो राज्य स्तर पर भाजपा आरएसएस के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ जो आंदोलन और संघर्ष हो सकते हैं, और उसके आधार पर जो राजनीतिक एकता या गठबंधन हो सकते हैं, वो हमें प्रयास करना चाहिए। ये स्पष्ट होना चाहिए कि जिन राज्यों में एक ऐसी पहचान है, जैसे पश्चिम बंगाल है, जैसे तमिलनाडु है, जैसे केरल है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, इस सब में अपने ही राज्य के वहाँ के एक नेशनल आइडेंटिटी है, या सब नेशनल आइडेंटिटी कह सकते हैं, या क्षेत्रीय पहचान है। ये हिंदुत्व जो कोशिश कर रहा है कि हमें वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन कल्चर, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति, ये होना चाहिए, और उसको पूरी तरह थोपना चाहते हैं सब जगह। वो इस तरह के राज्यों में वहाँ की जनता के आकांक्षाओं के खिलाफ है, सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। इसको भी हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि
हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? आज हमारे संघवादी ढांचा खत्म होगा, फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहते हैं। हर राज्य में वो चाहते हैं कि एक समान तरीके का सरकार ही नहीं, एक तरीके का कल्चर होना चाहिए, एक तरीके का भाषा होना चाहिए, एक तरीके का रीति रिवाज होना चाहिए। ये हिंदुत्व का लक्ष्य है। तो उसके खिलाफ अपने ही राज्य के क्षेत्रीय जो आइडेंटिटी है, अपने कल्चर है, अपने लैंग्वेज है, अपने रीति रिवाज है, उसकी रक्षा के लिए लोगों को लामबंद किया जा सकता है। तमिलनाडु में आज सबसे कम वहाँ मोदी और बीजेपी का असर क्यों है? इसलिए क्योंकि वहाँ की जनता में ये है कि ये हमारे द्रविडियन कल्चर और हमारे लैंग्वेज और हमारे इतिहास के खिलाफ है। तो लोगों में इस तरह इतने आसानी से वो हिंदुत्व की विचारधारा का घुसपैठ नहीं करता है। तो अलग अलग राज्यों के स्वरूप को समझते हुए फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब जनरल स्लोगन को ठोस रूप से वहाँ की परिस्थितियों में कैसे हम ठोस रूप देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, ये करने की ज़रूरत है। और मैंने कहा बीच में कि आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा को एक डोमिनेंट विचारधारा बनाने के लिए भी आगे बढ़ रहे हो। उस वैचारिक और सैद्धांतिक उसके खिलाफ संघर्ष करने की क्षमता हमारे देश के ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों में नहीं है। वो सिर्फ सीपीएम और लेफ्ट पार्टीज के हाथ में है कि हमारे पास वो वैचारिक और सैद्धांतिक हमारे सोच है और समझ है जो इसका विकल्प हो सकता है। तो हमारे ऊपर हमारे ताकत के बाहर, हमारे ताकत की जो सीमाएं हैं, उससे भी ज़्यादा हमारी भूमिका या योगदान रहेगा। क्योंकि ये सब पार्टियों को इकट्ठा करना, उनको एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म में ले आने के लिए वैकल्पिक जो हमारी नीतियां हैं, हमारे लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक जो प्लेटफॉर्म है, लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिसीज है, लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव है, उसी को हम केंद्र बना के इन दूसरे सेक्युलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस को हमें रैली करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। हमारी ताकत से बाहर, हमारी सीमित ताकत से बाहर हमारा प्रभाव है, उसको हमें इस्तेमाल करके इन तमाम फोर्सेस को इकट्ठा करके लड़ना पड़ेगा। तभी हिंदुत्व कॉर्पोरेट जो आज के जो रिजीम है, राज है, उसके खिलाफ सक्षम रूप से हम संघर्ष कर सकते हैं और सक्षम रूप से हम एक विकल्प को भी तैयार करके इस राज को खत्म करके एक वैकल्पिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक, लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक जो हमारे अप्रोच है उसको हम स्थापित कर सकते हैं। हमारे ऊपर वो काम जो है वो करने में पश्चिम बंगाल के वामपंथी और जनवादी आंदोलन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब से बंगाल में वामपंथ पर हमला होके यहाँ के टीएमसी सरकार बनी है और यहाँ हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारी जो कमजोरी रही है, उसके कारण पूरे देश में लेफ्ट का असर भी, हमारी ताकत भी कमज़ोर हुआ है। तो अगर लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव को सही मायने में पूरे देश में हमें पहुंचाना है, उसको साक्षात रूप से वहाँ विकल्प के रूप में ले जाना चाहिए, तो पश्चिम बंगाल में हमारे पार्टी और लेफ्ट की ताकत को बहाल करने की ज़रूरत है। और उसके लिए जो कठिन परिश्रम हमें करना है, वो करने के लिए हमें आज शपथ लेना है। कॉमरेड निरुपम सेन
जैसे हमारे पार्टी के क्रांतिकारी नेता के जीवनी से, काम से प्रेरणा लेके हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम आगे अपने पार्टी और वामपंथी और जनवादी आंदोलन को बढ़ाएंगे और जितना भी हमें इसके लिए कुर्बानी करना है, त्याग करना है, वो करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में दोबारा लेफ्ट और डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हम एक मजबूत और पावरफुल फोर्स के रूप में बढ़ाएंगे। यही शपथ लेके हमें कॉमरेड निरुपम सेन को श्रद्धांजलि भी देना चाहिए। धन्यवाद। কমরেডস, আমরা আমাদের জেলা পার্টির পক্ষ থেকে এবং আপনাদের পক্ষ থেকে কমরেড প্রকাশ কারাতকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাংবাদিক বন্ধুসহ আজ যেখানে যারা এসেছেন, উপস্থিত হয়েছেন, তাদেরও আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই সভার কাজ এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি।